अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन शाम 7 बजे तो कशर खबरनामे हेत छुस बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर खबरन हुंद तफसील जानने ब्रो अख नजर चन खास खबरन जम्मू कश्मीर असेंबली हुंद बजट सेशन अजक पे शुरू गवर्नर सद खुतबह सत सेशनस तुलना मुद्दास दफा 73 सवाल नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तो मौजूद हुकूमत मौकफ साफ तो वाजह सेशनस दौरान इन लूकन हंद मसले वतलवित हल करनस हवाले कदम तुलने उमर अब्दुल्ला तो श्रीनगर मज PDP तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुंद सांझ LG सुंद खुतबह तो उमर सरकार छप सठई तशवीशनाक महबूबा मुफ्ती तो नाजरीन पेश खबरन हुंद तफसील जम्मू कश्मीर हुंद असेंबली सेशन आज LG मनोज सिन्हा सद खुतबह सत शुरू सपुदमुत यथ दौरान LG मनोज सिन्हा वोन जम्मू कश्मीर मज तब्दीली हुंद अख नौ दौर शुरू सपुदमुत तो ये जम्मू कश्मीर हज तमीर तरक्की हवाले सरकार तरफ कई कदम तुलने आमत तत नौजवान रोजगार फराहम करने हवाले ते सरकार संजीद यल जन तमो वोन जम्मू कश्मीर हुंद रियासती दर्ज बहाल करने हवाले सरकार तरफ कोशिश जारी तो LG मनोज सिन्हा बजटस हवाले कत करान वोनमुत बजटस मज प्रेथ वर्गु ख्याल थवना आमुत युद्ध जन प्रेथ तबके कन लूकन राहत वाते For the first time this winter, my government, through close coordination between the administration and elected representatives, took comprehensive measures to minimize disruptions to the daily lives of the people during snowfall. This synergy enabled one of the swiftest restorations of essential supplies in Kashmir, including efficient snow clearance. Additionally, the power supply remained one of the most reliable with minimal interruptions. I extend my sincere appreciations to my government for their dedication and unwavering commitment to meeting the expectations of the people and ensuring seamless winter preparedness. This session is not just a legislative formality, but a reflection of your commitment to good governance, transparency, and inclusive development. This budget carries historic significance as it is the first in over 7 years to be presented by an elected government in Jammu and Kashmir. It symbolizes the people's power as it is prepared by the representatives chosen by the people themselves. This budget is not merely a financial document. It is a testament to the aspirations of the masses, reflecting their hopes for a brighter future. For the first time, Honorable Chief Minister has personally chaired meetings for all 20 districts separately, engaging directly with the elected representatives to understand their aspirations, regional needs, and development priorities in budget formulation. The voices of the people are again shaping the allocation of resources and the prioritization of development goals. This budget is a true celebration of democracy, an expression of the dreams and expectations of every household, every community, and every region of Jammu and Kashmir. It marks a moment of renewal and empowerment, where the collective efforts of the people's representatives are shaping the future of this land. This budget represents a new era of participatory governance, ensuring that the needs and aspirations of the common man remain at the heart of policy making. One of the foremost aspirations of the people of Jammu and Kashmir is the restoration of full statehood. My government remains steadfast in its commitment to addressing this legitimate desire of the citizens of Jammu and Kashmir. My government recognizes the emotional and political significance of the statehood for the people and is actively engaging with all stakeholders to facilitate this process in a manner that ensures peace, stability, and progress. We take immense pride in our composite culture and centuries-old traditions of amity and brotherhood. My government is committed to preserving the unity in diversity
that defines Jammu and Kashmir. It is firmly committed to maintaining peace and harmony, ensuring that the aspirations of our people are protected from divisive influences and cultivating an inclusive society built on mutual respect and harmony. Path to a prosperous and peaceful future. As I have mentioned earlier, my government remains fully committed to implementing its promises made to the people. वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला गवर्नर सिंध खुतब पत ज़राई इब्लाग सत कत करान वोनमुत ज दफा 370 हवाले हुकूमत तरफ अख रेजोल्यूशन असम्बली जरिए पास करना आमुत तो मौजूद सेशनस दौरान ये बजट पेश करनी तत रोज कोशिश ज मेम्बरान असम्बली तरफ इन लूकन इन मसल वतलावन युद्ध जन सरकार तरफ ये मसल इजरावन सवाल कदम तुलन। हाउस के बाहर कहाँ बात होगी, हाउस के अंदर बात करेंगे। ये तरीका नहीं है ना, हम हाउस के बाहर बात नहीं करते। काम कल से शुरू हो जाएगा। आज तो सिर्फ एलजी साहब का खुतबा था और ओबिचुअरी रेफरेंसेस दोनों हो गए हैं। कल से एलजी साहब के खुतबे पे बहस की। तमाम ये जो आप सवाल कर रहे हो, ये सारी बातें जो हैं मुझे यकीन है कि ऑनरेबल मेंबर्स जो हैं वहाँ पे उठा लेंगे। हुकूमत को जो कहना होगा हम वहाँ डिबेट के दौरान कह देंगे। एलजी मनोज सिन्हा जी का जो आज का खुतबा था वो सरकार का खुतबा था, उसको किस तरह से आप लेते हैं? उस पर आप क्या कहेंगे कि आपकी जो प्रायोरिटीज हैं वो क्या क्या रहेंगी? आपको क्या लगता है ना आपके इस खुतबे में हमारा कोई रोल नहीं है? जब एलजी साहब खुतबा देते हैं तो हुकूमत की तरफ से देते हैं, तो ये तो गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज है, ये हमारा काम है, मिलके करना है। सर, पीडीपी कह रही है कि धारा 370 पर कोई मेंशन नहीं हुआ है, आप लोगों ने उस पर भी बात की थी? अब हमने जितना उस पर करना था पहले सेशन में किया ना। हमारा रेजोल्यूशन आज भी कायम है, हाउस ने पास किया। यही लोग हैं पीडीपी और बाकी जिन्होंने उसको पास करने में मदद की। वो रेजोल्यूशन आज भी कायम है, बड़ी बात है। आप लोग तो शायद सोच रहे थे कि जो भी रेजोल्यूशन यहाँ जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को लेके होगा वो रिजेक्ट होगा, लेकिन वो रेजोल्यूशन रिजेक्ट हुआ नहीं, आज भी कायम है। तो इसमें और बात करने की जरूरत क्या है? ये थोड़ी ना कि हम बार बार यही बात करेंगे। हमने जो करना था पहले सेशन में कर दिया। अगर हमने वो रेजोल्यूशन नहीं लाया होता तब चलिए हम इस पे बहस करते, लेकिन रेजोल्यूशन लाया हमने, हाउस ने पास किया, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से पास हुआ। अब और क्या बात करनी है? नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी बजट सेशन सवाल कत करान वोनमुत अलपल तमाम मेम्बरान असम्बली यसान सेशन गज खुश असलूबी सान अंजाम वातुन युद्ध जन लूकन सत करना आमुत वादे पूरे करित आम लूकन राहत वाते। ये सेशन तो कश्मीर में भी लगा था और आज जम्मू में लगा है, और जो हमने वादा लोगों को कहा था कि जम्मू में भी दरबार होगा, उसी सिलसिले में आज ये सेशन जम्मू का लगा है। अब अगला जो लगेगा वो कश्मीर में लगेगा, तो लिहाजा कोई काफ़ी वक्फा नहीं है। थोड़े ही मैं कल 2 महीने से बाद ये सेशन लगा है और आपके सामने एक अच्छा सेशन बजट सेशन है, और जो लोगों के ऑनरेबल एमएलएज को मौका मिलेगा उनको अपने मुद्दे उठाने का, लोगों के जो कंसर्न्स हैं वो असेंबली के अंदर उठाने का मौका मिलेगा और अपनी बात रखने का एक मौका मिलेगा। और उसमें जहाँ तक ताल्लुक है लोगों का, कहीं ना कहीं काम निकलेंगे और सरकार की एक जो जवाबदेही होती है वो असेंबली में ऑनरेबल एमएलए अपने अपने सवाल पूछ के लेते हैं। तो इसमें से ज़्यादा कुछ देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है स्टेट हुड का, वो हमने उस समय भी कहा था और आज भी कहते हैं, जम्मू कश्मीर का जो स्टेट का दर्जा है वो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का भी वादा है, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब का हिंदुस्तान का उनका भी वादा है। तो लिहाजा उनके जो वादा हम उम्मीद करते हैं वो अपना वादा पूरा करेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर जब हालात ठीक हो जाएंगे उस समय स्टेट दिया जाएगा। और आज जब हालात ठीक हो गए, इलेक्शन हो गया, असेंबली अपनी काम कर रही है, तो लिहाजा उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा। नाजरीन खबरनामस में तुंद बार खबर मकदम तो पेश मजीद खबरन तफसील। भारतीय जनता पार्टी सीनियर लीडर तो हिजब इख्तलाफ लीडर सनील शर्मान रियासती दर्ज बहाल करने हवाले कत करान वोनमुत जे वज़ीर आलस पजन लूकन हिंद दोयम मसला हल करें तो स्टेट हुड अन भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर वापस। देखिए, स्टेट हुड भारतीय जनता पार्टी देगी, ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। आज जो जिस डॉक्यूमेंट में इन्होंने स्टेट हुड में कहा है कि हम सारे ऑल स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा करेंगे और स्टेट मांगेंगे, मैं उमर अब्दुल्ला साहब को गुलिस्तान चैनल के माध्यम से एक राय देना चाहता हूं। आप अपने कमरे में बैठिए, चीफ मिनिस्टर ऑफिस में बैठिए, स्टेट हुड हम लाएंगे, स्टेट हुड आ जाएगा, प्रधानमंत्री ने कमिटमेंट की है। अब जिन इश्यूज पे, जिन क्वेश्चंस पे, जिन इनके वादों पे
लोग इनसे सवाल पूछते, उनने इन सारे इश्यूज को, सारे सवालों को एक बक्स में बंद करके बाहर से स्टेटहुड का नाम रख दिया है। आपको बात करनी चाहिए थी इस वक्त कि आप बिजली कब तक देंगे, आपको बात करनी चाहिए थी आप सिलेंडर कब तक देंगे, आपको बात करनी चाहिए थी आप राशन कब तक देंगे। वो तो इस पूरे डॉक्यूमेंट में एक शब्द भी कहीं नहीं है। ये कंप्लीट एंडोर्समेंट है मोदी विजन फॉर जम्मू एंड कश्मीर। इस गवर्नमेंट ने एंडोर्स किया है मोदी के विजन को, अपना इन्होंने कुछ नहीं रखा है इसमें। एक शब्द मुझे बोलिए, जो इनने वादे किए थे, एक भी वादा जिसका जिक्र इनने किया है वो तो कहीं दिखा नहीं। देखिए नाजरीन खबरनामस में तुंद दोबारा खैर मकदम तो पेश मजीद खबरन हूं तफसील। श्रीनगर में आज PDP पार्टी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस सांस कर आमुत यथ दौरान पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती LG तो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी नुक्त चीनी करान वोन यम वाद अमि सरकार तरफ लूकन सर आमत लूकन नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी पे सठा वमेद, ताहम नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी पन्ने मौकफ निश दूर सपजम यम कि लूक तजव्वुज़ शिकार सपद। और उम्मीद ये की जाती थी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का जो खुतबा होगा वो जम्मू कश्मीर की मुश्किलात, मामलात और जम्मू कश्मीर के लोगों की जो ख्वाहिशात है, एस्पिरेशन है, उनकी अक्कासी करेगा। और उसके साथ साथ जो सरकार बनी है अभी हाल ही में यहाँ 3-4 महीने पहले, उन्होंने जो अपने मैनिफेस्टो में लोगों के साथ वादे किए हैं और उसके साथ साथ जो उनका एक नक्शा होगा, उनके जहन में विजन होगा कि हमने आने वाले 5 साल में जम्मू कश्मीर को इस मुसीबत से किस तरह निकालना है, उसके बारे में कोई डायरेक्शन की बात होगी। पर अगर आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना, जब 2019 में 5 अगस्त को हमारे जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, उन्होंने जो 370 को 35 से 2 इलीगली अनकॉन्स्टिट्यूशनली खत्म करके पार्लियामेंट में जो तकरीर की थी, और उसके बाद जितने भी यहाँ LG आए तो उनकी तकरीरें, चाहे 26 जनवरी हो, चाहे कोई फंक्शन हो, चाहे अभी जो हमारे प्रेजेंट LG हैं, इनकी तकरीरों को अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है इस गवर्नर एड्रेस में और उन तकरीरों में कोई फर्क नहीं है। पहले डे 1 जिस दिन ये जम्मू कश्मीर के साथ ये मामला किया गया, उसको मैं कांड कहती हूँ, डाका डाला गया, उसी दिन से होम मिनिस्टर साहब ने उस वक्त फ्लोर ऑफ द हाउस स्टेटहुड की बात की। और उसके बाद जितने भी LG आए, जितने भी बाहर से जो भी हमारे मिनिस्टर्स आते हैं, कोई आते हैं, तो वो उसी बात को दोहराते हैं कि कोई स्टेटहुड मिलेगा। पर मेरा ये मानना है जम्मू कश्मीर के लोगों के जो मामलात हैं, जो मुश्किलात हैं, वो स्टेटहुड तक महदूद नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली ऐसा लगता है कि जो BJP का जो एजेंडा है, जो उनकी पॉलिसी है जम्मू कश्मीर को लेके, कहीं ना कहीं ये जो अभी इतनी बारी अक्सरियत से लोगों ने जिस सरकार को चुना है, उसका एक्सटेंशन बन गई है। जो अभी तक हम कहते थे, चिल्लाते थे ये इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग उन हरकत को जो BJP ने इन सालों की, उनको जायज करार देने की उसमें दौड़ में लगे हुए हैं। आज लगता है बदकिस्मती से कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस वो कम कर गए हैं, और वो कहीं ना कहीं जो BJP पिछले 2019 से एक नैरेटिव चला रही है। देखिए, एक लेजिस्लेटर कैसे जुर्रत करता है, वो डिक्टेट करता है स्पीकर साहब को कि आप जी एंटी नेशनल और कोई ऐसा जो है रेजोल्यूशन या उसको एक्सेप्ट, इट इज द जॉब ऑफ द स्पीकर। हु इज द BJP MLA टू डिक्टेट इट? मगर स्पीकर साहब खामोशी से सुनते रहे, मुस्कुराते रहे और सर हिलाते रहे, ये ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है जिस उम्मीद से लोगों ने वोट डाले थे, 70% लोगों ने वोट डाले और एक जमात को यहाँ वोट डाले। जम्मू में BJP को मिला, यहाँ ओवरऑल NC को मिला। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनकी, मैं नहीं कहती हूँ कि उन्होंने 4 महीने में ही पता नहीं क्या कमाल करना था, मगर जबान देखिए, BJP 1947 से 48 जब से जम्मू कश्मीर का इल्हाक हुआ, उसके बाद स्पेशल पोजीशन मिली, तब से वो 370 के मुखालिफ बात करते रहे। उनके पास कोई ताकत नहीं थी। और आज उमर साहब कहते हैं कि मुझे 370 BJP से कैसे लूंगा। तो अगर वो 70 साल जब उनके पास कोई ताकत नहीं थी, इसको छीनने की बात करते रहे, तो कम से कम आप 370 जबान पे लब कुशाई कर लीजिए कि ये गलत हुआ है, ये नहीं होना चाहिए, इसको हम नहीं कहते हम अकेले रेस्टोर करेंगे।
हम सब मिलजुल के इसको रेस्टोर। मगर मेरा ये कहना है कि जम्मू कश्मीर इस वक्त सिर्फ 370 या स्टेटहुड की बात पे नहीं अटका हुआ है, हमारे मामला बहुत हैं। तो नाजरीन खबरनामा दीव इजाजत, खुदा सवाल।